رشتے دار تھے, جو پڑوسی تھے, جن کے ساتھ کاروبار تھا, ایوری بڈی بیکم اینیمی, سارے دشمن آقا تھے اور چند صحابہ تھے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے. مجھے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے وقت یاد آ گیا. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور مجھے یاد ہے کہ جب دور حدیث کے درجے میں یہ حدیث ہمارے استاد صاحب نے پڑھی تھی, اس وقت بھی ہماری کلاس میں ہمارے درجے میں سسکیوں کی آوازیں تھیں. خدا کی قسم یہ کیسا واقعہ ہے, آسمان نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا. اللہ کے حبیب نماز پڑھ رہے ہیں کعبے کے سامنے. ابو جہل کم وقت اعلان کرتا ہے کوئی ہے کہ آلے فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے میں معاذ اللہ کہتا ہے نبی پاک کے کاندھوں پر رکھ دے. اتنے میں عقبہ بن ابی معیط بدبخت اٹھا, وہ ایک جگہ سے اٹھا کر لایا اور نبی پاک کے دوش مبارک پر آقا کے کاندھوں پر رکھ دیا. آقا سجدے میں, اب کوئی اور ساتھ نہیں تھا کہ اسے اٹھا کر رکھ دے. یہ کافر ہنسنے لگے, کہہ مارنے لگے. حدیث کے الفاظ ہیں اتنا ہنس رہے تھے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرنے لگتے. بی بی فاطمہ اس زمانے میں چھوٹی تھی, عمر میں چھوٹی تھی. کسی نے بتایا جلدی آؤ بابا جان پر یہ مصیبت آئی ہے. بی بی فاطمہ دوڑتی بھی آئی, روتی بھی آئی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کاندھے سے وہ چیز ہٹائی. نبی پاک نماز سے فارغ ہوئے. آپ کا دل بہت غمگین تھا, آپ کی قلب اقدس پر بہت تکلیف پہنچی تھی اس واقعے سے. نبی پاک نے کیا کیا, اللہ سے دعا کی. آقا نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی, اے اللہ قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے. نام لے لے کر نبی پاک نے ان کے لیے تباہی کی دعا کی. ابو جہل, عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, ولید بن عتبہ, امیہ بن خلف, عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا کی. الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے. دل سے دعا نکلی تھی نبی پاک کی, غمگین دل سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں خدا کی قسم جب بدر میں مارکا ہوتا ہے میں نے دیکھا ان تمام جن کے نام نبی پاک نے لیے تھے ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی اور پھر تمام ظالموں کی لاشوں کو گھسیٹ کر بدر کے گھڑے میں ڈال دیا گیا. اتنی تکلیف, اور صرف نبی پاک پر تکلیف نہیں, صحابہ کو کتنا ستایا گیا. ذرا غور تو کرو. حضرت خباب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس زمانے میں اسلام لائے جب نبی پاک حضرت ارکم بن ابی ارکم کے گھر میں مقیم تھے. صرف چند ہی مسلمان ہوئے تھے لوگ. قریش نے ان کو بے حد ستایا, یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر انہیں لٹا دیا جاتا. یہ بولنا آسان ہے, کبھی جون جولائی کی گرمی میں بغیر چپل کے لاہور کی روڈ پر کھڑے ہو کے بتا دو, روڈ پر نہیں کوئلے کے انگاروں پر حضرت خباب کو لٹایا گیا اور ایک شخص ان کے سینے پر پیر رکھ دیتا اور اتنا دباتا کہ کوئلے کی جو کمر کی چربی تھی وہ پگھلتی اور اس چربی سے وہ کوئلے کی آگ بجھ جاتی. برسوں کے بعد جب حضرت خباب کی ملاقات امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ہوئی اور انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا, حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے اے خباب مجھے وہ پیٹھ دکھاؤ. حضرت خباب نے کمر سے وہ کپڑا ہٹایا تو پوری کمر سفید داغوں سے بھری ہوئی تھی. حضرت عمر کا دل بھر آیا, آپ رونے لگے, کہنے لگے خباب وہ پیٹھ دکھاؤ جو اسلام کی راہ میں جلائی گئی, میں اس کو چومنا چاہتا ہوں. اے گھر بیٹھے مسلمان ہونے والوں, خدا کی قسم بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے صحابہ کرام نے. صحابہ کرام کو کیسی تکلیف ہوتی تھی کہ صحابہ کرام کو تیز دھوپ میں ریگستان میں لٹا دیا جاتا, سینوں پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ کروٹ نہ بدل سکے. لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان مسلمانوں کے جسموں کو داغا جاتا, پانی میں اس قدر ڈبکیاں دی جاتی کہ ان کا دم گھٹنے لگتا. چٹائیوں میں لپیٹ کر مسلمانوں کی ناکوں میں دھواں دیتے تھے تاکہ سانس لینا مشکل ہو جائے. مگر وہ کیسے صبر و استقلال والے تھے. وہ خدائے وحدہ لا شریک کا نعرہ لگاتے, اللہ ایک ہے اس کا نعرہ لگاتے. ان ظالموں کے ظلم سے بھی ان کے استقلال میں پایا استقلال میں لغزش نہ آئی. پھر ہجرت حبشہ ہوئی, اس کے بعد شاب ابی طالب ہوتا ہے. 6 سنہ نبوی میں حضرت عمر ایمان لائے, حضرت حمزہ ایمان لائے. ذرا سوچو اے مبلغوں, نیکی کی دعوت دے کر تھک جاتے ہیں, کہتا ہے ہمارے علاقے میں کام ہی نہیں ہوتا, درس دے رہا ہوں کوئی آتا ہی نہیں اجتماع میں. پیارے آقا ہیں, 6 سال میں کتنے مسلمان ہوئے پتہ ہے آپ کو؟
हजरत उमर सन 6 नबवी में ईमान लाए। इसका मतलब यह हुआ आप 40 का अदद पूरा करने वाले हैं, तो 6 साल में 40 लोग ही मुसलमान हुए नबी पाक की दावत पर। तो इस्लाम कुर्बानी मांगता है, दिल छोटा नहीं करना चाहिए। मगर ये पहले 40 तो हो गए, फिर अल्लाह ने उरूज कैसा दिया कि जब नबी पाक आखिरी खुतबा दे रहे थे, कितने सालों बाद, जरा आप कैलकुलेशन समझेंगे। 6 सने नबवी में 40 मुसलमान, 2 सने हिजरी में जब बदर का मार्का होता है 313 मुसलमान। ये 40 से अगले 5 सालों में पहुंचे 313 पर। ठीक है जनाब। अब साल कितने हो गए ऐलान नबूवत के? 15 साल में 313, 15 ईयर्स में कुछ खवातीन मिला ले तो 400-450 हो गए। मगर 8 सने हिजरी में 6 साल के बाद जब मक्का फतह होता है तो 10,000 का लश्कर नबी पाक के साथ है। 313 से 10,000 तक कैसे पहुंचे? सिर्फ 6 सालों के अंदर। और जब मक्का फतह हो गया, कुरान ने क्या कहा? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। फौज दर फौज लोग इस्लाम में आएंगे। 8 सने हिजरी में मक्का फतह होता है 10,000, और 10 सने हिजरी में जब आका आखिरी खुतबा देते हैं तो 1,24,000 साहबा अरफात के मैदान में मौजूद हैं। विद इन 2 ईयर्स 10,000 से 1.25 लाख। शुरू में तकलीफ आती है, बिला तमसील समझाने के लिए कह रहा हूं। जो लोग दावत इस्लामी की अवाइल से वाबस्ता हैं, पूछो उनसे शुरू में काम कितना मुश्किल था, अमीर अहले सुन्नत की क्या कुर्बानियां थी। बसों में, ट्रेनों में, स्कूटर पर, सुजुकियों में अमीर अहले सुन्नत ने सफर किया। अल्लाह सलामत रखे हमारे याफुर भाई, मंसूर भाई और भी मुझे सीनियर इस्लामी भाई नजर आ रहे हैं। जब लाहौर अमीर अहले सुन्नत आए, कितनी मस्जिदें थी हमारे पास, क्या था दावत इस्लामी में? अरे तकलीफें उठाई, मुश्किलें उठाई, और आज आलम यह है कि 40 साल में दावत इस्लामी से करोड़ों लोग वाबस्ता हो गए। शुरू में मुश्किल आती है, लेकिन जो साबित कदम रहते हैं अल्लाह उन्हें आसानियां अता फरमाता है, अल्लाह मदद फरमाता है, अल्लाह फरिश्तों के जरिए मदद फरमाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम और साहबा ने बड़ी तकलीफें उठाई। ठीक है। अब जालिमों ने पता है क्या किया? 6 सने नबवी में, पहले तो 6 सने नबवी में हजरत उमर भी ईमान ले आए, हजरत हमजा भी ईमान ले आए, कुछ जान आ गई, तब मुसलमानों को तकवीयत मिल गई। अब उन्होंने प्लान किया ये लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं, इनका बाइकाट कर दो, सारे कारोबार बंद कर दो और इनसे कोई डील ना करे, खाना गल्ला कुछ भी ना पहुंचाए, कोई रिश्तेदारी नहीं, सलाम दुआ भी नहीं करनी है। अब क्या हुआ? नबी पाक और उनके चंद खानदान वाले और जो मुसलमान हुए थे वो एक दर्रे के अंदर 2 पहाड़ों के बीच में शाबे अबी तालिब में कैद हो गए। गोया कोई सलाम भी नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा खुद ही हिम्मत टूट जाएगी, लोग भूखे होंगे तो इस्लाम से मुनहरिफ हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये 3 दिन 30 दिन 1 महीने की कैद नहीं थी, ये 3 साल गुजारे। हमें 3 दिन का काफिला भारी पड़ता है ना यार, वो बिस्तर नहीं मिलेगा, वो खाना नहीं मिलेगा, गर्मी बहुत होगी। 3 साल तक बगैर खाने पीने के, बगैर बिस्तर के, बगैर घर के। अल्लाह के नबी भी मौजूद है, साहबा किराम भी। कौन कौन साहबा किराम? सोचो तो सही। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी, मौला अली, हजरत उमर, बड़े बड़े साहबा किराम। अच्छा फिर खवातीन, बच्चे भी। मगर ये कैसे सब्र वाले थे। अल्लाह अकबर। शायर जरा इसका नक्शा खींचता है, ये 3 साल गुजरे कैसे। शायर कहता है कि ये 3 साल कैसे गुजारे। बड़ी सख्ती से करते थे कुरैश उस घर की निगरानी, न आने देते थे गल्ला का हद इम्कानी। कोई गल्ले का सौदागर अगर बाहर से आ जाता तो रस्ते में जाकर ही बूलब कमबख्त बहकाता। पहाड़ों का दर्रा एक किलाए महसूर था गोया, खुदा वालों को फाको मारना मंजूर था गोया। रसूलुल्लाह लेकिन मुतमईन थे और साबिर थे, खुदा जिस हाल में रखे उसी हालत पे शाकिर थे। वो भूखी बच्चियों का रूठ कर फिलफौर मन जाना, खुदा का नाम लेकर सब्र की तस्वीर बन जाना। तड़पना भूख से कुछ रोज आखिर जान खो देना, वो माओ का फलक को देख कर चुपचाप रो देना। रजाओ सब्र से दिन कट गए उन नेक बख्तों के, कि खाने के लिए मिलते रहे पत्ते दरख्तों के।
गुजारे 3 साल इस रंग से ईमान वालों ने दिखा दी शान इस्तिकलाल अपनी आन वालों ने। उन जालिमों ने पता क्या किया था, एक मुआहिदा लिखा कि ये शराइत है, कोई नहीं करेगा इनसे बात, कोई नहीं करेगा कारोबार, कोई गल्ला नहीं देगा, और उस मुआहिदे को काबे पर लटका दिया। 3 साल के बाद जिब्रील अमीन ने आकर नबी पाक को गैब की खबर बता दी कि हुजूर वो मुआहिदा जो है ना उसको दीमक ने खा लिया है, अल्लाह के नाम के अलावा उस मुआहिदे में कुछ भी बाकी नहीं है। नबी पाक ने अबू तालिब से कहा कि आप इनसे कहिए कि उस मुआहिदे में सिर्फ अल्लाह का नाम लिखा है, बाकी दीमक ने खा लिया। हालांकि खुद मक्के से दूर, काबे से दूर थे ना नबी पाक, इंटरनेट तो था नहीं, कोई ऐसा तो था नहीं कि कोई पिक्चर भेजी हो किसी ने, ये गैब की खबर थी। तो अबू तालिब कहते हैं देखो मेरे भतीजे ने कहा है, अगर ये सच ना हुआ तो मैं इनको तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और अगर ये सच है तो मुआहिदा तो खत्म हो चुका है, हमें इस कैद से निकलने दो। कुफार ने कहा फिर तो ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब काबे पर जाकर उस मुआहिदे को देखा गया, सारे मुआहिदे को दीमक ने खा लिया था, जहां जहां अल्लाह का नाम था वो जगह बाकी थी। मुआहिदा खत्म हुआ और इस महसूरी से मुसलमानों को रजात मिली। किस किस तकलीफ की बात करूं, किस किस कुर्बानी की बात करूं। अच्छा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बाद हम जैसा इंसान तो कहे भाई अब खत्म करो यार, जब कोई मानता ही नहीं है, इतना लड़ते हैं, इतना मारते हैं, इतना सताते हैं, खत्म करो, लोग हिम्मत हार जाते हैं। नबी पाक ने फरमाया चलो मक्के के लोग नहीं मांगते, ताइफ चलते हैं, ताइफ के सरदारों को नेकी की दावत देते हैं। ताइफ में लोग घूमने फिरने जाते हैं, बड़ा पुरफजा मकाम है। मेरे आका वहां नेकी की दावत देने गए, मगर वहां के लोगों ने वो जुल्म किया, वो तकलीफ पहुंचाई कि जबान साथ नहीं देती। नबी पाक पर जिस तरह पत्थर बरसाए गए, नबी पाक पर जिस तरह आवाजें कसी गई, नबी पाक के कल्बे अथर को जिस तरह जख्मी किया गया, इतने पत्थर मारे गए कि आका के जिस्म अक़दस से खून मुबारक निकला और आपके नालैन, आपके चप्पल मुबारक खून से भर गए। ये क्यों मार खा रहे थे, ये क्यों पत्थर खा रहे थे? ऐ लाहौर में रहने वालों, नबी पाक इस्लाम को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते थे, सारी दुनिया के लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए काम हो रहा था। ताइफ के मैदान में क्या हुआ, एक शायर अपने अल्फाज में लिखता है, बड़े अम्बोह दर अम्बोह पत्थर लेके दीवाने, लगे मी पत्थरों का रहमते आलम पे बरसाने। वो अबरे लुत्फ जिनके साए को गुलशन तरसते थे, यहां ताइफ में उनके जिस्म पर पत्थर बरसते थे। वो बाजू जो गरीबों को सहारा देते रहते थे, वो बाजू जो गरीबों को सहारा देते रहते थे, पया पे आने वाले पत्थरों की चोट सहते थे। वो सीना जिसके अंदर नूर हक मस्तूर रहता था, वही अब शक हुआ जाता था, उससे खून बहता था। जगह देते थे जिनको हामिलाने अर्श आंखों पर, वो नालैन मुबारक हाय खून से भर गई अक्सर। हुजूर इस जोर से जब चूर होकर बैठ जाते थे, इतने पत्थर बरसाए कि आका थक के बैठ जाते, उन जालिमों को चैन नहीं आता था, फिर पकड़ के उठा देते और फिर पत्थर बरसाते। हुजूर इस जोर से जब चूर होकर बैठ जाते थे, शकी आते थे, बाजू थाम कर फिर उठाते थे। अब जिब्रील अमीन हाजिर हुए, पहाड़ों के फरिश्ते को लेकर हाजिर होकर, हुजूर बहुत जुल्म हो गया, आप हुक्म कीजिए, ताइफ के इन पहाड़ों को मिलाकर इस कौम को तबाह बर्बाद कर देते हैं। मगर कैसा दिल था नबी पाक का, कैसे मेहरबान है आका, आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं। आप फरमाते कि मैं अल्लाह की जात से पुरुम्मीद हूं, अगर ये ईमान नहीं लाते तो इनके बाद इनकी औलाद में से लोग आएंगे जो अल्लाह पर ईमान भी लाएंगे, उसकी इबादत करेंगे। बस दुआ ना की, उनकी हलाकत की दुआ ना की। अगर ये लोग आज इस्लाम पर ईमान नहीं लाते, खुदाए पाक के दामान रहमत में नहीं आते, मगर नस्लें जरूर इनकी उसे पहचान जाएंगी, दरे तौहीद पर एक रोज आकर सर झुकाएंगी। इस्लाम कुर्बानियों से फैला है। खुदारा में एक मशवरा तो ये दूंगा, नबी पाक की सीरत को पढ़े, खुदारा पढ़ो तो सही मेरे आका ने जिंदगी में क्या किया,
कैसे जिंदगी गुजारी, नबी पाक ने अपनी हयात तैयबा में क्या क्या वाकयात हुए। आज हमें और हमारे बच्चों को दुनिया वालों की बातें पता है। किसी बच्चे से, नौजवान से पूछो कि फला फुटबॉलर, फला क्रिकेटर के बारे में जानते हो, वो नाम भी बताएगा, साथ रिकॉर्ड भी बता देगा। मगर अल्लाह के हबीब की बातें पूछो, सहाबा की बातें पूछो तो हमें नहीं मालूम। ना करो ऐसा, इतनी दूरी अच्छी नहीं है। एक मशवरा देता हूँ, मकतबतुल मदीना की बड़ी प्यारी किताब है सीरत मुस्तफ़ा, उस किताब को पढ़े, रोज घर में पढ़े, रोज अपने बच्चों के सामने पढ़े कि चलो आज नबी पाक की सीरत का एक आप बयान करता हूँ। बल्कि जो मैंने साल गिनवाए ना, माशाल्लाह इस किताब में ईयर वाइज नबी पाक की सीरत है। पहला साल नबवी, दूसरा साल नबवी, तीसरा, फिर पहला हिजरत का साल, दूसरा हिजरत का साल, तरतीब बार ये नबी पाक की जिंदगी में जो वाकयात हुए ये सारे लिखे, ये पढ़े। और आज जो मेरा मौजू है इससे सबक ये लेना है, ईमान की कदर करें, इस्लाम की कदर करें, मोहसिनों को याद रखो। घर बैठे मुसलमान होइए हम, मगर अब जिम्मेदारी क्या है हम पर, जब हम दीन की खिदमत करें ना। जरा सोचो, नबी पाक के फिर साहबा ने कितनी खिदमत की। 1,24,000 साहबा थे ना हज्जतुल विदा के मौके पर। आपको पता है जन्नतुल बकी में कितने हैं? कमोबेश 10,000 साहबा, जन्नतुल माला में शायद 4-5 हजार साहबा, बाकी 1,10,000 किधर गए? मदीना और मक्के में रहने वाले लोग थे, निकल गए, आगे बढ़ गए, दुनिया में फैल गए। क्यों? अल्लाह के दीन को फैलाना था, नबी पाक के पैगाम को लेकर चलना था। जो बिजनेसमैन बैठे हैं, कभी चाइना गए होंगे, ग्वांगजू के अंदर हजरत साद बिन अबी वकास का मजार है। किधर मदीना, किधर मक्का और किधर चाइना। पाकिस्तान से जाए तो जहाज उतरता ही नहीं, इतनी लंबी फ्लाइट है, इतना ही लंबा रास्ता, मदीने से और दूर। कभी सोचा घोड़ों पे, ऊंटों पर कितने साल, कितने महीने लगे होंगे? 3 दिन के मदनी काफले में जाने में प्रॉब्लम हो जाती है, कैसे निकलूं? साहबा तो 1,10,000 ऐसे काफले में गए कि वापस ही नहीं आए मक्के मदीने, हैं? बाहर ही कई मज़ारात बने, दूसरे मुल्कों में, वही बस गए। फिर साहबा के बाद ये पैगाम लेकर कौन चला? एहसान है हम पर औलिया किराम का। दाता हुजूर लाहौर आए तो लोग ईमान लेकर आए ना। दाता हुजूर से फैज लेकर ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान जाते हैं, 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान कर दिया। ये औलिया किराम का फैजान है। औलिया के मानने वालों, ये तो कम से कम सीखो उनसे। मैं एक मशवरा देता हूं, जब दाता हुजूर पे जाए ना, कभी बाबा फरीद के दर पर जाए, कभी कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पर जाए, बाउद्दीन जकरिया मुल्तानी, जिस मजार पर भी जाओ, 90% बल्कि उससे भी ज्यादा आप एक चीज चेक करना कि ये बुजुर्ग जिनका मजार है, ये पैदाइश यहां की है कहीं और की है? तो 90% आपको जवाब मिलेगा, दाता हुजूर लाहौर के नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर के नहीं है, बाबा फरीद पाक पतन के नहीं है, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कराची के नहीं है। ये सब दूसरे मुल्कों से आए, ऐसा आए कि वापस नहीं जा सके, मगर इस्लाम की बुनियाद डाल दी, दीन के परचम को बुलंद कर लिया। अब हमारी बारी है, अब हम दीन की क्या खिदमत कर रहे हैं। बड़ी तादाद में ताजिर बैठे हैं। मैं ताजिर बिरादरी से बात करना चाहता हूं। कयामत के दिन हजरत खब्बाब से मुलाकात हो गई, जिन्होंने उनकी पीठ जलाई गई। हजरत बिलाल हबशी से अगर मुलाकात हुई कि उमैया उनका जालिम मालिक उन्हें तपती रेत पर लटाता था। पंजतन पाक के गुलाम कहलाते हैं, इमाम हुसैन की नियाज करते, जरूर करें। लेकिन अगर इमाम हुसैन से कयामत के दिन मुलाकात हुई और उन्होंने पूछ लिया कि हमने तो नाना के दीन के लिए सब लुटा दिया, हजरत खब्बाब कहे मैंने पीठ जला दी, हजरत बिलाल कहे मैं रोज मार खाता था। साहबा किराम की तवील दास्तान है। हजरत हमजा नबी पाक के सगे चचा, प्यारे चचा, आपको शहीद किस बेदर्दी से किया गया? आपके जिस्म के आज़ा काटे गए, आपका कलेजा चबाया गया। इन सब ने कितनी कुर्बानियां दी। एक सवाल हो गया अगर कयामत के दिन हमसे, तुमने क्या किया दीन के लिए? तुमने इस्लाम की कौन सी खिदमत की? तुम क्या करके आए हो? हमने तो कलमा पढ़ा, मार खाई, नमाज पढ़ते मार खाते, अजान नहीं दे सकते थे, तवाफ काबा सामने होता था। या उम्रा करने वालों, हज करने वालों, अब कभी तवाफ पर जाना तो आंसू बहाना। अल्लाह तूने कैसा नसीब दिया कि सुकून से तवाफ कर रहा हूं। साहबा तो काबा देखते थे, तवाफ नहीं कर सकते थे, बहुत मारते थे। इतना जुल्म हुआ साहबा किराम पर। हुदैबिया के मौके पर
1500 सहाबा नबी पाक के साथ एहराम पहनकर आ गए मदीने से, नहीं जाने दिया, एहराम उतारना पड़ा। अरे आज अल्लाह तौफीक देता है, एहराम पहनकर लब्बैक पढ़ते हुए मक्के चले जाते हैं, मदीने चले जाते हैं। एहसान मानो उन साहबा का, एहसान मानो नबी पाक का, एहसान मानो औलिया किराम का। कदर करो अपने ईमान की, कुछ तो दीन की खिदमत कर लो, कुछ तो इस्लाम का नाम बुलंद करने में अपना किरदार अदा करो। एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। मगर आज हाल यह है, माजरत के साथ ताजिर बरादरी से बात कर रहा हूं, बल्कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आज हाल यह है, हमने इस्लाम की खिदमत तो कोई नहीं की, हाँ इस्लाम को बदनाम करने में कसर कोई नहीं छोड़ी। पहले के लोग वो थे जिनको देखकर लोग कलमा पढ़ लेते थे, हमारे बुजुर्गों का दीदार करते थे, कारोबार करते थे, पड़ोस में आते थे, कलमा पढ़ लेते थे। ऐसा पड़ोसी भूल गए हजरत मालिक बिन दीनार का वाकया। आपके बराबर में एक आतिश परस रहता था, उसने क्या किया, डेलिबरेटली, जानते बूझते रोज गंदगी फेंकता हजरत मालिक बिन दीनार के घर में। आज गुस्सा करेंगे, आज लड़ाई करेंगे, आप गंदगी आती पानी डालते साफ कर दे, गंदगी आती पानी डालते साफ कर दे। 3-4 दिन के बाद वो गैर मुस्लिम दरवाजे पर आकर दरवाजा खटखटा कर कहता है, हुजूर मैं रोज गंदगी भेजता हूँ, आपको गुस्सा नहीं आता? तो गुस्सा तो आता है। फिर क्या करते हैं, कब पी जाता हूँ, रब को गुस्सा पीने वाले बहुत पसंद है, मैंने इसलिए तुम्हें माफ कर दिया है। वो कहता है, हजरत एक घर की गंदगी बाद में धोइएगा, पहले मेरे दिल की गंदगी साफ करें। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, काफिर पड़ोसी मुसलमान हो जाते। आज हमारा मुसलमान पड़ोसी हमसे परेशान है, बताओ ना हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदारा मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, इस बार मीलाद थोड़ा नए अंदाज से मनाते हैं। इस बार मीलाद में अपने किरदार को सजाते हैं, जरूर परचम लगाएं, जरूर लाइटें लगाएं, जरूर खुशियां मनाएं। मगर आओ इस बार पता नहीं फिर जिंदगी में मीलाद मिले ना मिले। कितने लोग थे पिछले साल हमारे साथ, आज नहीं है। अगले मीलाद में शायद हम भी ना हो दुनिया में। इस मीलाद में चेंज हो जाते हैं ना, बदल जाते हैं ना। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये मीलाद, ये महीना मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए, मैं नबी पाक की सुन्नतों पर पक्का आमिल बन जाऊं, मैं अपने किरदार को सच्चा सुथरा कर लूं, मैं कारोबार को पाक कर लूं, मैं हराम रोजी से तौबा कर लूं, मैं मुसलमानों की खैरखाई शुरू कर दूं। मुझे कहें मार्केट वाले कि यार आपने झूठ बोलना छोड़ दिया अपने कारोबार में, तो आप कहें मैं सच्चे नबी का गुलाम हूं, आका का मीलाद आया है, मैंने झूठ से तौबा कर ली है। कोई कहे यार आप बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, गाली गलोच करते थे, और आप जवाब दे बस यार बहुत हो गया, मैं नबी पाक का गुलाम हूं, मेरे आका की खूबसूरत गुफ्तगू की क्या बात थी, आज के बाद मैंने झूठ बोलने से, लड़ाई झगड़ा करने से तौबा कर ली है। अरे भाई आप तो जुम्मा पढ़ते थे सिर्फ, अब मस्जिद में नजर आने लग गए। आप कहें मैं आका का उम्मती हूं, और नबी पाक फरमाते कुर्रतु आइनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, मैं बस अब 5 वक्त का नमाजी बन गया हूं। कोई कहे यार आपके चेहरे पे माशाल्लाह दाढ़ी नजर आ रही है, खैर तो है? और आप जवाब दें कि हाँ, जिस नबी का कलमा पढ़ा है, जिस आका का मीलाद मना रहा हूं, वो भी तो दाढ़ी वाले हैं, और उन्होंने ही फरमाया दाढ़ी बढ़ाओ और मुझे पस्त करो और मेरे दुश्मनों जैसा चेहरा ना बनाओ। मीलाद भी मनाऊं और दाढ़ी भी मुंडवाऊं, मेरी गैरत नहीं गवारा करती, मैंने बस आका की सुन्नत सजा ली है। क्या नहीं हो सकता ऐसा? इस बार क्या हम अपने आप को सजाकर, अपने दिल को सजाकर मीलाद मना लें? ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, खुदारा आइए, बहुत हो गया। कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल का मेरा भाई बैठा है, अब तो जाने की बारी है, पता नहीं कब चले जाए। अब तौबा कर लीजिए, तब्दीली लाइए अपने अंदर। ताजिर हैं, पहले ताजिरों ने इस्लाम फैलाया कारोबार के साथ साथ, आप भी तिजारत के साथ सुन्नतें फैला सकते हैं, आप भी इस्लाम की खिदमत कर सकते हैं। दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता हो जाए, मदनी काफिलों में मुल्क के अंदर भी सफर करें, बैरूनी मुल्क में भी सफर करें, अपने बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को यूज करें और लोगों तक नेकी की दावत पहुंचाएं।
क्या मालूम आपकी नेकी की दावत से कोई एक नमाजी बन जाए, किसी को साथ गाड़ी में बिठाकर फैजान मदीना हफ्तावार इज्तिमा में ले आए, कभी मदनी मुजाकरे में किसी को दावत दे कि मैं भी टीवी देख रहा हूँ मदनी चैनल, आप भी देख ले, कभी पकड़ के फैजान मदीना कराची ले आए, कभी इंटरनेशनल ट्रिप पर जाएं, वहां अपने दोस्तों को कहें चलो दावत इस्लामी के इंटरनेशनल मरकज में चलते हैं। जबान चलती रहे, कोशिश होती रहे, एक आज नीयत कर लो कि मरने से पहले मैंने दीन का नाम बुलंद करना है, इस्लाम की कोई बड़ी खिदमत करनी है। एक मशवरा और देता हूं, हदीस पाक का मजमून है, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। सबने अपने अपने घर दुनिया में बना लिए, नहीं बने तो कोशिश कर रहे होंगे बनाने की, क्यों ना दुनिया में रहकर जन्नत में भी एक घर बना ले। सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी कितना बड़ा काम कर रही है। साल की 600 से ज्यादा मस्जिदें दावत इस्लामी बना रही है। कम से कम एक मस्जिद बनाने की तो नियत कर लो कि चलो अपनी फैमिली की तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से मैं भी इंशाल्लाह एक मस्जिद बनाऊंगा। पूरी ना बना सके, 2-3 दोस्त मिलकर नियत कर ले, पार्टनरशिप करके भी तो कारोबार करते हो ना, चलो जन्नत का घर मिलकर बनाते हैं। तो इस बार तब्दीली लाए अपने अंदर कि यार मैंने क्या खिदमत की है, मैं नबी पाक के इस दीन की क्या खिदमत कर रहा हूं। सहाबा ने तो अपना हक अदा किया, औलिया किराम ने इतनी बड़ी मेहरबानी की, अब बारी हमारी है। तो इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के दस्तों बाजू बनकर अब जिंदगी इंशाअल्लाह नबी पाक के दीन की खिदमत में गुजारेंगे। आज ऐसा नारा लगाना है ये ऐवान इकबाल, और इंशाअल्लाह इसकी फजाएं गवाह हो जाएं, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, हराम रोजी नहीं कमाएंगे, कभी किसी मुसलमान को धोखा नहीं देंगे, और अब दावत इस्लामी के साथ मिलकर दीन की खूब खिदमत करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार ने जाने